Today we will see the basic concept of shear force and bending moments. Okay, so in our last lecture many students has said that कि आप लोगों का कुछ कॉन्सेप्ट जो है एस एफ डी बी एम डी का प्रॉपर क्लियर नहीं है, तो मैं आज उसका जो बेसिक है एस एफ डी बी एम डी का और उसके कुछ जो सेलेक्टेड न्यूमेरिकल्स है डिफरेंट केसेस के, ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो भी पीपीटी मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा, जो भी न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे, वो पूरा स्टडी मटेरियल जो है मैंने ड्राइव में शेयर कर दिया है, तो आप लेक्चर होने के बाद कभी भी उसको रिफ़र कर सकते हैं। उसमें पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व है, ठीक है। इसमें किसी को डिफ़िकल्टी आती है तो आप मेरे से क्वेश्चन अगले लेक्चर्स में पूछ सकते हो, ठीक है। सो shear force and bending moment diagram. Okay, first of all, what is moment and bending moment? It is a very basic definition and basic question. Moment is nothing but it is a product of force and a perpendicular distance between the lines of action of the force and the point about which the moment is required to be calculated. Okay, so the bending moment is nothing but a moment which is caused, the bending effect on the beam is called bending moment, and it is generally denoted by the symbol capital M or capital BM. So this is the standard sign convention used for shear force. If it is to be calculated on leftward side, so it will be treated as positive, and if it is to be calculated on rightward side or right hand side, it will be treated as negative. So this sign convention you must understand, okay, you must remember while solving the numerical. Next is the sign convention for the bending moments. So the bending moment is considered as a sagging bending moment if it tends to bend the beam to a curvature having the convexity at the bottom. Okay, so if it is bent in downward direction, or if the convexity will be formed on the downward side, then the sagging bending moment will be formed. Okay, so the sagging bending moment is considered as a positive bending moment always. Next is upward. Similarly, if the bending moment is considered as a hogging, okay, if we try to pull on upward side, so if it tends to bend the beam to a curvature having the convexity at the top as shown in figure as given below, the hogging bending moment is considered, which is to be considered as negative bending moment. Okay, अब ये दोनों पीपीटी में इसका इम्पोर्टेंट मैं आपको बताता हूँ कि सैगिंग बेंडिंग मोमेंट आपके बीम में कहाँ पे आता है और हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे फॉर्म होता है। तो अगर आप एक पर्टिकुलर बिल्डिंग कंसीडर करते हो, ठीक है, उसमें n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और उसमें n नंबर ऑफ बीम कनेक्टेड है। ओके, सो अगर आपने केस देखा होगा कंटिन्यूस बीम का, ओके, तो उस केस में जो बीम के सेंटर पे से आपका बेंडिंग आता है दैट इज़ कॉल्ड सैगिंग बेंडिंग मोमेंट। जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आप कैलकुलेट करते हैं एट द सेंटर दैट इज कॉल्ड एज ए सैगिंग बेंडिंग मोमेंट विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा और मैक्सिमम रहेगा। और जो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट होता है एट द इंटरमीडिएट सपोर्ट और एट द कॉर्नर सपोर्ट्स, या आप बोल सकते हैं हर एक सपोर्ट के कॉर्नर पे जो भी आपका बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट होता है वो होता है आपका हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट, विच इज़ ऑलवेज आपका हॉगिंग रहेगा, दैट इज़ नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट रहेगा। तो ये आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इन द एनालिसिस। Next is shear force. So it is nothing but a diagram which show the variation of a shear force along the length of the beam is called shear force diagram, and bending moment diagram is nothing but a variation of a bending moment along the length of the beam is called bending moment diagram. Okay, then the important thing is point of contraflexure, that is a inflection point. So where this point of contraflexure will occur, it is a point on the bending moment diagram where the bending moment change its sign from positive to negative. जहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव होता है आपका पॉइंट, वो कहलाता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू भी, जो भी आपको फॉर्म में भी देना है जैसे, तो ये आप अच्छे से इसको याद रखिए। देन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए इन्फ्लेक्शन पॉइंट। सो एट अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और अ कॉन्ट्राफ्लेक्चर द बेंडिंग मोमेंट इज ऑलवेज जीरो। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस पर यह है कि जहाँ बेंडिंग मोमेंट जीरो रहता है वहाँ पे आपको मैक्सिमम शेयर फोर्स मिलेगा, और जहाँ मैक्सिमम शेयर फोर्स जीरो रहता है वहाँ पे आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा। तो ये आपका वाइस वर्सा रिलेशन है बिटवीन द बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स। ये रिलेशन आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, नाउ लेट अस सी द स्टैंडर्ड बीम केसेस, क्योंकि आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे
तो उसमें आपको बहुत सारे केस ऐसे आएंगे जो कि स्टैंडर्ड केसेस में आते हैं, उसमें डायरेक्टली आपके स्टैंडर्ड डायग्राम्स बुक्स में अवेलेबल है, आप उसको डायरेक्टली प्लॉट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द लोडिंग क्राइटेरिया। तो इसमें जैसे अभी एट प्रेजेंट इसमें जैसे 5 केसेस दिया हुआ है, तो उसमें सपोज पहला केस है सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग अ कॉन्सेंट्रेटेड लोड इज एक्टिंग एट द सेंटर, तो उसके लिए स्टैंडर्ड शियर फोर्स डायग्राम जस्ट लाइक इसमें बनेगा, आपका डायग्राम में दिख रहा है, उसी तरीके से बेंडिंग मोमेंट आपका एज ए ट्रायंगुलर पैटर्न बनेगा। अब इसकी वैल्यूज जो है आपको कैलकुलेट करना है एज पर दी फार्मूला, और इसका भी फार्मूला डायरेक्टली आपका बुक्स में अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बीम सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग यूडीएल थ्रू आउट, उस केस में आपका स्टैंडर्ड शियर फोर्स डायग्राम जिस तरीके से बनेगा और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ओके पैराबोलिक आर्च की तरीके से बनेगा। उसी तरीके से अगर आपका फिक्स बीम है उसमें सेंटर पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है तो उसका स्टैंडर्ड एसएफडी बनेगा और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसी तरीके से आपका फिक्स बीम हैविंग यूडीएल थ्रू आउट, देन कैंटिलीवर बीम हैविंग पॉइंट लोड एट द फ्री एंड एंड कैंटिलीवर बीम हैविंग अ यूडीएल थ्रू आउट, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड एसएफडी बीएमडी के स्टैंडर्ड केसेस हैं और स्टैंडर्ड डायग्राम्स है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और उसके जो भी पॉइंट है यदि मैग्नीट्यूड जो आप कैलकुलेट करते हो बेस्ड ऑन द फार्मूला, ठीक है, वो हम लोग एक एक करके अलग अलग न्यूमेरिकल्स में इसको देखेंगे, ठीक है। नाउ सबसे पहले एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं हम लोग, ड्रॉ द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम that is SFD and BMD for a simply supported beam subjected to 3 point loads as shown in figure, ओके। तो ये आपको सिंपली सपोर्टेड बीम दिख रहा है, ठीक है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास में मोबाइल होगा या फिर अगर आपके पास में कैलकुलेटर होगा तो प्लीज़ आप उसमें कैलकुलेटर ऑन कर लीजिए, मोबाइल अगर होगा या अगर आपके पास कैलकुलेटर रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और आगे से जब भी आपका SA1 की क्लास रहेंगी तो प्लीज़ आप एक पेज पेंसिल और आपका कैलकुलेटर लेके रखिए, ठीक है, ताकि इंस्टेंट अपने को कैलकुलेशन करने के लिए आसानी रहेंगी उसमें, ठीक है। तो आप अपने पास में कैलकुलेटर रख लीजिए इसमें कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जो आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो भी आपने पढ़ा वो पूरे के पूरे जो स्ट्रक्चर्स थे वो थे आपके डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर। जैसे ये पर्टिकुलर आपको सिंपली सपोर्टेड बीम दिख रहा है, ये आपका कैटेगरी में आता है डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर में। तो डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर और इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आपका यूनिट नंबर 1 जो SA1 में है आपका थ्योरी पार्ट, वो मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। उसमें नोट्स में भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहली बात तो ये है कि डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें आप कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो होती है आपकी बेसिक, दैट इज व्हाट आर द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, समेशन ऑफ Fx0, समेशन ऑफ Fy0, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। ये तीनों कंडीशन लगा के जब आप पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर सकते हो, अननोन्स निकाल सकते हो, तो वो आपका स्ट्रक्चर कहलाता है डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर। और ऐसा स्ट्रक्चर जिसको आप ये तीनों इक्वेशन लगा के सॉल्व नहीं कर सकते, उसमें आपका अननोन अगेन क्रिएट होता है, तो वो आपका स्ट्रक्चर कहलाता है इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर। ये सबसे बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर एंड इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर। अब ये सेम आपको सिंपली सपोर्टेड बीम दिख रहा है, एक सपोर्ट आपका फिक्स है, एक सपोर्ट आपका रोलर है, ठीक है। अगर यही पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में पर्टिकुलर बीम्स में मैं एक बीम और ऐड कर लेता हूँ, ए बी के अलावा BC भी ऐड कर लेता हूँ, ओके। AB के साथ में एक और स्पैन कंटिन्यू में BC भी ऐड कर लेता हूँ, तो वो स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस बीम, ओके। तो ये जो स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका हो जाएगा इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर, जिसमें आपका मोर देन 1 स्पैन हो गया। अब जिसमें मोर देन 1 स्पैन हो जाएगा उसको आप कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो कंटिन्यूअस जो बीम रहेगा वो आपका इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आएगा आपका, ठीक है। इसको देखेंगे किस तरीके से इसको एनालाइज कर सकते हैं आप, ठीक है। देखो इसमें RA दिया हुआ है, RB दिया हुआ है, डिस्टेंस डिफाइन हुआ है, ठीक है, लोड डिफाइन हुआ है 5 न्यूटन, 10 न्यूटन एंड 8 न्यूटन। देखो सॉल्यूशन में क्या किया है, क्लॉकवाइज मोमेंट इज पॉजिटिव। सबसे पहले क्या किया उसने, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए पॉइंट पे मोमेंट लिया इक्वल टू 0 और कैलकुलेट किया है फ्रॉम द राइट साइड, ठीक है। तो सबसे पहले RB जो कि आपका रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि हम लोग मोमेंट कंसीडर कर रहे हैं लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो इसीलिए -RB इंटू टोटल स्पैन है 8 मीटर
प्लस नेक्स्ट जो है आपका वर्टिकल लोडिंग जो डाउनवर्ड जा रहा है, तो वो मोमेंट घूमेगा आपका क्लॉकवाइज। तो 8 इंटू 7 रिस्पेक्टिव डिस्टेंस, देन प्लस 10 इंटू 4, देन प्लस 5 इंटू 2 इक्वल टू 0। तो फाइनली वी विल गेट द आंसर ऑफ आर बी इज इक्वल टू 13.25 न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, नाउ यूजिंग द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दैट इज समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। एफ वाई लगाएंगे तो क्या होगा, आर ए प्लस आर बी, ठीक है। तो आर ए प्लस 13.25 इज इक्वल टू 5 प्लस 10 प्लस 8। तो टोटल आर ए कितना मिल गया, 9.75। तो मेरे को आर ए मिल गया, आर बी मिल गया, ठीक है। आर ए मिल गया और आर बी मिल गया। अब इसको मेरे को डायरेक्टली क्या कैलकुलेट करना है, इसके बेस पे बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स। ये समझ में आया सबको कैसे कैलकुलेट हुआ? आर ए आर बी रिएक्शन समझ में आई सबको कैसे कैलकुलेट हुई? ठीक है, आर ए आर बी रिएक्शन कैलकुलेट हो गया। अभी देखते हैं हम लोग इसका एस एफ डी बी एम डी कैसे प्लॉट करेंगे आप। तो देखो इसमें सेक्शन लिया हुआ है लेफ्ट वर्ड और राइट वर्ड हर एक पॉइंट पे। अगर आप पहला सपोर्ट देखोगे तो पहला 0 0 है, फिर 1 1 है, फिर 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 और 9 9 है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको शेयर फोर्स कैलकुलेट करके लेने का है, ठीक है। इसको चेक करेंगे किस तरीके से निकालना है आपने। शेयर फोर्स एट सेक्शन 1 1 इज डिनोटेड बाय V11 कंसीडर किया हमने सपोज। शेयर फोर्स एट सेक्शन 2 2 एज कंसीडर एज V22 एंड सो ऑन, ठीक है। ये देखो इसमें कैसे कैलकुलेट किया। पहले V00 लेफ्ट वर्ड में क्या है, कोई भी आपका लोड नहीं है तो वो 0 ले लेंगे। 1 1 पे कैसे आ रहा है, देखो आपका डायरेक्टली वर्टिकल रिएक्शन जा रहा है 9.75, तो वो 9.75 V11 पे कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं V22, तो V22 पे क्या रहेगा, अगेन 9.75 रहेगा क्योंकि उसके पास में कोई भी लोड नहीं है उसके बीच में। तो 22 पे क्या रहेगा, अगेन 9.75 रहेगा। अब जैसे हम लोग क्रॉस करते हैं 2 से 3 पे, जैसे 3 पे जाते हैं तो वहाँ पे आपका 5 न्यूटन का लोड सेंटर में आ गया। तो हमको क्या करना है, 9.75 ऑलरेडी न्यूटन में आपके पास फोर्स था, उसमें आपका एट 0.33 पे क्या हो रहा है, 5 न्यूटन का जो लोड है डाउनवर्ड जा रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको डाउनवर्ड में माइनस करना पड़ेगा उसमें। तो 9.75 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 4.75। सो shear force at V33 will be equal to 4.75। ओके, उसके बाद में आपका सेक्शन 4 अब ये जो 4.75 आया आपका, ये अगेन आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो उसके ऊपर रहेगा, क्योंकि आपका जो भी वैल्यू अभी कैलकुलेट हुआ है 9.75 4.75 ये ऑल वैल्यूज़ आर क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव वैल्यू जो भी कैलकुलेट होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीम की लाइन के ऊपर में कंसीडर होगी, और जो भी वैल्यू माइनस में कैलकुलेट होती है इट विल बी ट्रीटेड इन द डाउनवर्ड साइड बिलो दी लाइन, ठीक है। उसके बाद में V44 वहाँ पे अगेन कोई लोड नहीं है 3 और 4 के बीच में, तो सेम लाइन जाएगा आपका 4.75 का। उसके बाद में 10 पे देखो, जैसे आप V55 पे आते हो तो 10 न्यूटन का अगेन लोड डाउनवर्ड जा रहा है, तो 4.75 में से -10 करोगे आप, तो आपको आंसर मिलेगा -5.25। अब ये देखो मैग्नीट्यूड कितना आ गया, -5.25। तो आपका जो हॉरिजॉन्टल बेस लाइन है वहाँ से वैल्यू क्या होगा, नीचे जाएगा -5.25। वो डायग्राम हम लोग आगे वाली स्लाइड में देखेंगे, अभी सिर्फ कैलकुलेशन समझ लो। उसके बाद देखो V66 पे जैसे जाएंगे आप, तो 5 और 6 के बीच में कोई भी लोडिंग नहीं है, तो आपका एज इट इज़ माइनस में -5.25 वैल्यू रहेगा, ओके। उसके बाद में 7 पर जाते हैं तो 8 न्यूटन का लोड है आपका, अगेन माइनस में जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो 5.25 -8, ओके। यहाँ पे 7 पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे -5.25 होना चाहिए, तो -5.25 -8 दैट इज इक्वल टू -13.25 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में V88 पे क्या रहेगा, -13.25, और अगर आप RB पे देखोगे तो वो बराबर 13.25 प्लस में है, तो वो माइनस और प्लस मिला के क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये आपका फाइनल चेक है,
तो सबसे इम्पॉर्टेंट चेक क्या है आपका, जहाँ आप स्टार्ट कर रहे हो RA से RB पे जाने के बाद में आपकी वो वैल्यू को प्लस माइनस जो भी रहेगा RB की रिएक्शन के साथ में, वो वैल्यू सम होने के बाद में वो वैल्यू हमेशा आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। वो वैल्यू आपको 0 मिलना ही चाहिए आपको, ठीक है ना। अब देखेंगे कैसा इसको प्लॉट करते हैं। ये देखो, सबसे पहले 9.75 था, उसके बाद में 5 न्यूटन तक के आपका 9.75 आया, फिर उसमें से माइनस किया आपने 5 न्यूटन तो 4.75 हो गया। 4.75 अगेन आपका हॉरिजॉन्टल लाइन चलेगा, देन 10 न्यूटन आने के बाद में माइनस में चला गया, फिर 5.25 के बाद में अगेन वो हॉरिजॉन्टल माइनस में गया, वहाँ से 8 न्यूटन का लोड अगेन आने की वजह से क्या हो गया, वो उसमें ऐड हो गया 5.25 में, तो वो 13.25 हो गया। तो लास्ट में 13.25 पे जाने के बाद में वो प्लस में दिया हुआ है, इसीलिए एट द सपोर्ट बी पे उसका वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। इस तरीके से आपका स्टैंडर्ड शियर फोर्स डायग्राम कैलकुलेट होगा। अब देखो, इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चेक ये है, इसमें मैंने आपको जैसे डेफिनेशन में स्टार्टिंग में बताया, द पॉइंट वेयर द शियर फोर्स इज 0, एट दैट पॉइंट द बेंडिंग मोमेंट विल बी मैक्सिमम। सो जो आपको डी पॉइंट दिख रहा है बीम में, वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आप कैसे भी कैलकुलेट करो बेंडिंग मोमेंट, आइदर लेफ्टवर्ड से लो राइटवर्ड से लो, आपका बेंडिंग मोमेंट वो पॉइंट पे सबसे ज़्यादा आएगा। तो बाय रूल ये है कि जहाँ शियर फोर्स 0 रहेगा वहीं पे आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट होता है। ओके, एक्चुअल प्रैक्टिस में भी जो भी आप स्ट्रक्चर का एनालिसिस करोगे, फ्रेम स्ट्रक्चर रहे, बीम्स रहे, ठीक है, टोटल फ्रेम्स रहे, उसमें एक बात हमेशा ध्यान में रखना, कॉन्सेप्ट आपका सेम है। जहाँ शियर फोर्स 0 है वहाँ पे ही आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है, कोई दूसरी जगह पे नहीं निकालना। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखो। नाउ लेट अस प्रोसीड टू दी बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। देखो, बेंडिंग मोमेंट एट ए इज डिनोटेड एज MA एंड बेंडिंग मोमेंट एट B इज डिनोटेड एज MB एंड सो ऑन। सो MA क्या रहेगा, 0 रहेगा। अगर आप डायग्राम देखते हो इसमें ए पे मोमेंट 0 रहेगा, क्योंकि आपका सपोर्ट क्या है, वो फिक्स सपोर्ट है, वहाँ पे आपका मोमेंट 0 रहता है। तो कोई भी सिंपली सपोर्टेड अगर स्ट्रक्चर है, आप किसी का भी सिंपली सपोर्टेड स्ट्रक्चर का एनालिसिस कर रहे हो, तो उसके जो फ्री एंड सपोर्ट रहेंगे वो ऑलवेज 0 रहेगा, उस पर कभी भी मोमेंट नहीं आता। ठीक है, नाउ देखो A 0 हो गया, सिंपली सपोर्ट है। अब MC कैलकुलेट कर रहा है 9.75 इंटू 2, तो डायरेक्टली बाय डेफिनेशन क्या है आपका डेफिनेशन मोमेंट का, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर आप C पे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हो तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो फोर्स आ रही वो है 9.75 न्यूटन की। यहाँ देखोगे अगर आप 9.75 की RA कैलकुलेट हुआ था, उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, 2 है, तो 9.75 इंटू 2। अब क्योंकि हम लोग उसको लेफ्टवर्ड साइड से देख रहे हैं, तो उसका जो रिएक्शंस है वो कैसा घूमेगा, क्लॉकवाइज। तो 9.75 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 2 मीटर। तो उसका आंसर कितना आ रहा है बेंडिंग मोमेंट का, 9.75 इंटू 2, दैट इज आंसर इज 19.5 न्यूटन मीटर। ओके, सो 19.5 न्यूटन मीटर इज द आंसर। नाउ अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे को आपको बताना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग यूनिवर्सिटी में वैल्यूएशंस के लिए भी जाते हैं सब्जेक्ट्स के लिए, उसमें स्टूडेंट्स के सबसे ज़्यादा जो मार्क्स है वो कहाँ पे कटते हैं, 100% सॉल्व करके आने के बाद 100% आंसर राइट लिखने के बाद में भी, वो है यूनिट। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यूनिट में गलती कर देते हैं। शियर फोर्स की यूनिट लिखते हैं न्यूटन मीटर और बेंडिंग मोमेंट की यूनिट लिखते हैं न्यूटन। तो अगर आप ऐसा करते हो, पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व किया, 100% राइट है, वैल्यू भी मिल गई, सब मिल गया, लेकिन आपने यूनिट गलत कर दिया, तो मैं आपको फ्रेंकली बताता हूँ, आपको मार्क्स अगर 13 मार्क्स के लिए पूछा गया है तो उसमें हार्डली आपको 6 मार्क्स मिलेगा। ये रूल है, आपके 50% टू 60% मार्क्स डायरेक्टली डिडक्ट हो जाएंगे आपके टोटल आंसर में से। तो यूनिट स्ट्रक्चरल एनालिसिस में आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिट के बेस पे ही आपका पूरा की पूरा जो है आइडेंटिफाई होता है कि आपको सही में समझ में आया कि नहीं आया। आंसर कैसा है कोई भी इधर उधर से पूछ के लिख लेता है, लेकिन यूनिट हर एक याद नहीं रखता, इसीलिए आपको हर एक को यूनिट याद रखना है और अच्छे से कैलकुलेशन समझना है। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट ऑलवेज कैलकुलेटेड इन न्यूटन मीटर। नाउ MD इज इक्वल टू 9.75 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 2।
ये कैसे आया आपका एम का, देखो अगर हम डी पे रहेंगे तो उस पर क्या है, वर्टिकल 9.75, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज़ 4 मीटर, ये हो गया पहला आपका। देन उसमें डाउनवर्ड फोर्स जा रही है 5 न्यूटन की, तो वो माइनस में जाएंगी क्योंकि डाउनवर्ड है, तो 5 इंटू 2, -5 इंटू 2, सो आंसर विल बी इक्वल टू 9.75 into 4 minus 5 into 2, that is equal to 29 Newton meter. And then finally ME is equal to 9.75 into 7 minus 5 into 5 minus 10 into 3, that is equal to 13.25. ओके, तो अगर आप इसमें देखोगे तो MD जो पॉइंट है, D पॉइंट जो था आपका सेंटर का पॉइंट है, ठीक है। तो सेंटर के पॉइंट पे आपका क्या है कि आपका शेयर फोर्स 0 हो रहा है, वहीं पे आपको सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड में बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है, दैट इज़ 29 न्यूटन मीटर। सो इट मीन्स दैट यू हैव सॉल्व द करेक्ट न्यूमेरिकल, आपका न्यूमेरिकल 100% राइट है। ये क्रॉस चेक है आपका स्ट्रक्चर एनालिसिस में, ठीक है। ये आप हर एक स्टेप पे चेक कर सकते हो कि आपका न्यूमेरिकल राइट है कि रॉन्ग है, आपको भी पता चल जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें आगे के मोमेंट्स भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में MB 0 रहेगा क्योंकि सिंपली सपोर्ट एंड है, ठीक है। उसके बाद में ये देखो, ये आपका फाइनल प्लॉटिंग ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से, ठीक है। तो पेपर में आपको कैलकुलेशन, फुल कैलकुलेशन इज एक्सपेक्टेड है, आपको करना है, और उसमें फाइनल प्लॉटिंग, डायग्राम की प्लॉटिंग, और उसमें देखो जिस तरीके से BMD कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है, ये SFD BMD, ये फाइनल एग्जाम्पल जो निकाला हुआ है, इस तरीके से डायग्राम के नीचे ही आपको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट फाइनली बनाना है, ठीक है, विथ ऑल नोटेशंस एंड ऑल यूनिट्स। जब आप ये पूरा इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे पेपर में विथ ऑल कैलकुलेशन ऑन राइट हैंड साइड, उस बेस पे आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। आपने पूरा कैलकुलेशन कर दिया, आखिरी में बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स नहीं बनाया, हर एक के ऊपर में 2-2, 3-3 कहीं ना कहीं मार्क्स है, वो हिडन मार्क्स है, क्योंकि यूनिवर्सिटी कभी भी आपको 13 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो भी पेपर में आता है कभी नहीं बताती, वो खुद डिसाइड करती है कि उस पर कितना मार्क्स डायग्राम पे देना है, कितना आपको कैलकुलेशन पे देना है। तो आपके तरफ से 100% जो है इनपुट रहना चाहिए। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन फाइनल आउटपुट में आपका आना चाहिए। आपका लोडेड डायग्राम है, उसके नीचे प्रॉपर शेयर फोर्स है विथ ऑल प्रॉपर यूनिट्स है, उसमें साइन कन्वेंशंस है, उसके नीचे में BMD है विथ ऑल प्रॉपर नोटेशंस है, और उसका मैग्नीट्यूड्स है। इस बेस पे आपको इसमें फुल मार्क्स मिलेगा। तो ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल्स हो गया। उसके बाद में ये आपका स्टेज डायग्राम है। लेट अस सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। ये अभी एक ओवरहैंग वाला केस है, ठीक है। ड्रॉ द shear force and bending moment for a double side overhanging beam subjected to loading as shown in figure. Locate the point of contraflexure if any. Point of contraflexure मतलब इन्फ्लेक्शन पॉइंट आपको निकालना है अगर आपका इसमें कहीं पे आता है तो ये टिपिकल ओवरहैंग वाला केस है। मिरर इमेज है, देखो इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका D से अगर आप देखोगे डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस आपका राइटवर्ड साइड में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो देखेंगे इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ दी अननोन रिएक्शंस। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ अननोन रिएक्शन RA एंड RB, ठीक है। तो देखो इसमें क्या लिखा है, ड्यू टू द सिमेट्री ऑफ द बीम द लोडिंग एंड बाउंड्री कंडीशन रिएक्शन एट बोथ द सपोर्ट आर इक्वल। जितना RA पे लोड आएगा उतना ही आपका RB पे लोड आएगा। तो डायरेक्टली आपका जो कैलकुलेशन किया हुआ है RA इक्वल टू RB इक्वल टू, ठीक है, हाफ कंसीडर किया है। क्यों हाफ किया है? बिकॉज ऑफ दी सिमेट्री, ठीक है। सिमेट्री कंसीडर किया है तो उसने हाफ पोर्शन ले लिया, उसने 5 प्लस ऑल लोडिंग कंसीडर किया, 5 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 2 इंटू 6, ठीक है। तो ये टोटल 16 किलोन्यूटन का लोड आपका इसमें आएगा। नाउ RA पे 16 का लोड रहेगा, RB पे 16 का लोड रहेगा बिकॉज ऑफ दी ओवरहैंग पोर्शन। टोटल बीम इज सिमेट्रिकल अबाउट Y एक्सिस, ठीक है। अब उसके बाद में है कैलकुलेशन ऑफ दी शेयर फोर्स डायग्राम। देखो किस तरीके से निकाला आपका। सेक्शन बना लीजिए सबसे पहले आपका हर एक पॉइंट पे, हर एक लोडिंग के पास में, ठीक है। सपोर्ट्स पे तो 0 0 1 1 2 2 3 3 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले V0 0 0 रहेगा। V11 पे देखो कितना आया, -5 किलो न्यूटन, क्योंकि डायरेक्टली डाउनवर्ड लोड जा रहा है वहाँ पे। V22 पे कितना लोड आएगा, अगेन -5 किलो न्यूटन, क्योंकि एक 1 और 2 सेक्शन के बीच में कोई भी लोड नहीं है। V33 जैसी जाएगी आप तो वहाँ 16 का अपवर्ड है, तो -5 प्लस 16 तो कितना हो गया 11 किलो न्यूटन। तो अब ये 11 किलो न्यूटन आप कैसे दिखाओगे इसको, ऑन
अपवर्ड साइड ऑफ दी ज्योमेट्री, मतलब आपको हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर दिखाना है क्योंकि वो पॉजिटिव हो गया अभी। उसके बाद में V33 के बाद में V44 का देखो कैलकुलेशन कैसा है। 11 माइनस 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 क्यों कंसिडर किया है, कोई बता सकता है इसमें? वाई माइनस 2 इंटू 3 इज कंसिडर? देखो V44, हाँ यूडीएल है। पेपर में आपको ऐसे ही यूडीएल दिया रहेगा इस तरीके से। बहुत सारी बुक्स में अपन वो सर्कल जैसे बनाते हैं, लेकिन पेपर में ज़्यादातर इस तरीके से यूडीएल देते हैं। वो पूरा यूडीएल है। आप देखो इंटेंसिटी से समझा करो। इंटेंसिटी लिखिए बेटा 2 किलोन्यूटन पर मीटर। मेरा क्वेश्चन ये है कि 11 माइनस 2 इंटू 3 कहाँ से आ गए? यूडीएल माइनस करेंगे तो 11 टोटल किलोन्यूटन लोड था आपका 3 पे। 2 इंटू 3 इसीलिए कंसीडर किया है क्योंकि आपको शेयर फोर्स काय में निकालना है। शेयर फोर्स का यूनिट क्या है? किलो न्यूटन या न्यूटन है, बराबर है। आपका इंटेंसिटी काय में दिया हुआ है? देखो इंटेंसिटी काय में दिया हुआ है 2 किलोन्यूटन पर मीटर है, बराबर है। तो आप 2 किलोन्यूटन पर मीटर को डायरेक्टली 11 किलोन्यूटन में से माइनस कर सकते हो क्या? आपके पास एक यूनिट है 11 किलोन्यूटन की, देखो अगर आप V33 देखोगे, और एक आपकी इंटेंसिटी की देखो यहाँ पे यूनिट है 2 किलोन्यूटन पर मीटर। आपको शेयर फोर्स की वैल्यू चाहिए किलो न्यूटन में, तो ये पर मीटर के लिए आपको क्या करना है, ये मल्टीप्लाइड करना है इसमें। तो जब आप इसको मल्टीप्लाइड करोगे, ये पर मीटर वाला जो केस है मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? किलो न्यूटन में। इसीलिए 11 माइनस 2 इंटू 3 किया है, तो ये हो गया 5 किलो न्यूटन। एट सेक्शन 4 यू विल गेट द आंसर एज 5 किलो न्यूटन, ठीक है। उसके बाद में अगेन जब 5 पे जाओगे आप तो वो 10 किलो न्यूटन माइनस है, तो वहाँ से 5 माइनस 10 आंसर इज -5 किलो न्यूटन, ओके। उसी तरीके से आगे कैलकुलेट करोगे 5 to 6, तो 5 to 6 में आपका क्या है, डायरेक्टली यहाँ पे 2 किलो न्यूटन पर मीटर का इंटेंसिटी है और यहाँ पे 3 का डिस्टेंस है, तो 2 इंटू 3 6 हो गया, तो -5 -6 आंसर इज -11 किलो न्यूटन। 7 पे क्या आएगा आपका? -11 और यहाँ से अपवर्ड कितना जा रहा है? 16 किलो न्यूटन, तो -11 + 16 5 किलो न्यूटन। देन फाइनली 8 पे 5 किलो न्यूटन रहेगा क्योंकि 7 8 के बीच में कोई लोडिंग नहीं है। एंड देन फाइनली एट सेक्शन 9 पे 5 - 5 0। देखो ये फाइनल चेक हो गया आपका। आखिरी में आपका चेक यही रहता है कि वैल्यू जो है आपका इसमें 0 मिलना चाहिए। एट 9 सेक्शन पे आपको वैल्यू फाइनली 0 0 मिल गया, ये यहाँ पे चेक हो गया इसमें, ठीक है। नाउ लेट अस सी कैसे प्लॉट करेंगे इसमें। देखो इस डायग्राम देखो इसमें किस तरीके से दिया। पहले -5 था, -5 के बाद में वो 5 तक सपोर्ट ए तक 5 किलो न्यूटन माइनस में गया। उसके बाद में वहाँ पे ए पे 11 किलो न्यूटन हो गया, उसमें 11 किलो न्यूटन हो गया। 11 के बाद में जब 5 किलो न्यूटन उसमें गया हुआ है तो वो इंक्लाइन लाइन दिखाया हुआ है। इंक्लाइन लाइन क्यों दिखाया हुआ है? क्योंकि वहाँ पे आपका यूडीएल दिया हुआ है। जब भी यूडीएल का पार्ट आता है तो वहाँ पे आपका जो डायग्राम है, स्टैंडर्ड डायग्राम, वो क्या रहता है? इंक्लाइन रहता है, ठीक है। और उसके बाद में देन 5 किलो न्यूटन एट द मैक्सिमम पॉइंट, डी पॉइंट पे क्या हो गया? 0 हो गया, 5 - 5, ठीक है। और लास्ट में फिर बी पॉइंट पे 11 किलो न्यूटन, देन 5 एंड 5 किलो न्यूटन कंसीडर हुआ। तो ये डायग्राम से आपको क्या समझ में आ रहा है कि मैक्सिमम जो पॉइंट है कॉन्ट्राफ्लेक्चर के, ठीक है, वो आपका कैलकुलेट हो सकता है आइदर पॉइंट ए, आइदर पॉइंट डी, आइदर पॉइंट बी, बिकॉज 3 पॉइंट पे आपका शेयर फोर्स क्या है? 0 हो रहा है। एट पॉइंट ए, एट पॉइंट डी, एट पॉइंट बी। अब आपको इसमें क्रिटिकल चेक करना है कि कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर्म होगा, ठीक है। नाउ अभी इसमें देखेंगे बेंडिंग मोमेंट। तो एम सी और एम ई ओवर हैंग पोर्शन है, तो वहाँ पे मोमेंट नहीं आता। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, याद रखो इसमें कि जो भी ओवर हैंग पोर्शन कोई भी न्यूमेरिकल में, कोई भी केस में अगर आता है, बीम रहे, कॉलम रहे, फुटिंग रहे, फ्रेम्स रहे, जो भी आप स्ट्रक्चर सॉल्व करोगे आगे फ्यूचर में, ओवर हैंग पोर्शन पे आपका मोमेंट जो रहेगा एट एम सी और एम ई क्या रहेगा? यहाँ पे 0 रहेगा, बिकॉज बेंडिंग मोमेंट एट फ्री एंड इज ऑलवेज 0। नाउ मोमेंट एट ए एंड बी आपका कैलकुलेट होगा। ए पे जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको उसका रिस्पेक्टिव
लेफ्ट हैंड साइड का और बी पे रिस्पेक्टिव राइट हैंड साइड का लोड कंसीडर करना है और रिस्पेक्टिव डिस्टेंस लेना है। तो एट पॉइंट ए और बी इट विल बी -5 × 2 दैट इज इक्वल टू -10 किलोमीटर। उसके बाद में एम डी सेंटर पे अगर निकालना है तो उस पर कैलकुलेट करते हुए चलना है, आइदर फ्रॉम लेफ्टवर्ड साइड और राइटवर्ड साइड। तो दोनों ही सिमेट्रिकल है, लेफ्टवर्ड ले लेते हैं तो -5 × 5 टोटल डिस्टेंस प्लस 16 × 3 माइनस इंटेंसिटी का 2 × 3 × 1.5, तो मैक्सिमम आपको वहाँ पे मोमेंट मिलेगा डी पे 14 किलोन्यूटन मीटर। ये आपका मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट है वो कैलकुलेट हो जाता है। तो इस तरीके से आपका फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट होगा। ठीक है, 10 किलोन्यूटन जो है आपका नेगेटिव में जाएगा एट द रिस्पेक्ट टू सपोर्ट ए एंड बी। उसके बाद में डी पे आपका 14 किलोन्यूटन का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट होगा। तो आप देखो जो आपके ये पर्टिकुलर डॉटेड पॉइंट दिखा रहे हैं वो है आपके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शंस। तो जहाँ पे शियर फोर्स आपका 0 था वहाँ पे आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप फाइनल प्लॉट कर सकते हो उसमें। ठीक है, फाइनली आपको ये डायग्राम में इस तरीके से बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स एक्सपेक्टेड रहता है जो कि आपको बनाना है विथ ऑल नोटेशंस एंड ऑल यूनिट्स। ठीक है, ये देखो ये दिखा रहा है आपको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, ये 2 पॉइंट दिख रहे हैं आपको, ये 2 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शर्स है। यहाँ पे आप पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शर कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको किस तरीके से कैलकुलेट करना है, देखो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया दोनों कॉर्नर पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शर्स आ रहे हैं जहाँ पे आपका वो बेंडिंग मोमेंट 0 हो रहा है। ठीक है, वहाँ से आपको एक्स डिस्टेंस नियरेस्ट सपोज पे मार्क करना है। एक्स सेक्शन ले लिया आपने, एक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए, एक्स डिस्टेंस फ्रॉम बी, ये आपको कैलकुलेट करना है। So let x be the distance of point of contraflexion from support A and taking the moment at the section xx considering the left portion। हम लोग लेफ्ट पोर्शन कंसिडर करते हैं। तो देखो mxx अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा -5। ठीक है, -5 ब्रैकेट में 2 + x, क्योंकि मेरे को लेफ्ट से x सेक्शन पे आपको कैलकुलेट करना है बेंडिंग मोमेंट, प्लस 16। ओके, 16 आपका वर्टिकल आ रहा था अगर आपको याद होगा, रिएक्शन 16 × x -2 × x²/2। यहाँ से आप x² जो है कैलकुलेटर में पुट करके बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। सो एट x = 1 और 10, x = 1 मीटर पे आप जो है इसकी वैल्यू रख के निकाल सकते हो। ठीक है, ये पर्टिकुलर इक्वेशंस में आप पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शंस आइदर फ्रॉम लेफ्ट साइड और राइट साइड से निकाल सकते हो। ठीक है, ये दूसरा टिपिकल एग्जांपल्स दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आपके जो है पर्टिकुलर काफ़ी न्यूमेरिकल्स इसमें सॉल्व है। ठीक है, सेम पीपीटी मैंने आपको गूगल ड्राइव में शेयर भी किया हुआ है, और सॉरी गूगल क्लासरूम में। आप इसमें से न्यूमेरिकल देख के कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर सकते हो आपका। ठीक है, इसमें बहुत सारे केसेस हैं। ठीक है, ये मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में इसीलिए कंसिडर किया है क्योंकि ये बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स का कैलकुलेशन आपको आना बहुत ज़रूरी है हर एक पर्टिकुलर केस के लिए। ठीक है, जब तक कि आपको इसमें मास्टरी नहीं आती, इसमें जब तक कि आप परफेक्ट नहीं हो जाते, आप स्ट्रक्चर एनालिसिस के आगे के जो पार्ट्स है जिसमें आपको फार्मूला बेस्ड कैलकुलेशंस है, आप वो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि उसमें आपको बेसिकली डिफरेंट मेथड्स दिए हुए इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के लिए। उसमें आपको वो फार्मूले में वैल्यूज़ रखना है और उसमें फाइनली आपको क्या निकालना है प्लॉट करके, बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स। फाइनल आउटपुट पूरे 6 यूनिट्स में आपका क्या रहेगा, बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स एंड नथिंग एल्स। आपको ये बेंडिंग एंड शेयर फोर्स आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अभी इसमें किसी को कोई डाउट है या कुछ प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास से जो है हमारा यूनिट नंबर 1 का जो बेसिक